Hello everyone. Today we will discuss concept related to the cost of production. This is the next chapter. We are already discussed about the theory of productions. Let's start. Those who are new on my YouTube channel, please like and subscribe it. Cost function. Cost function. If we want to produce quantity of goods X, we need two type of inputs: factor input and non-factor input. Factor input means land, labor, capital and entrepreneurship, and other type of expenditure like raw material, it is known as a non-factor input. When we produce goods X, we expend on factor input and non-factor inputs. That expenditure is known as a cost of production. Like cost of production means expenditure incurred on various input to produce given level of output is known as a cost of production. Input means factor input and non-factor input. Factor input means land, labor, capital and entrepreneurship, and non-factor input means expenditure on raw material. When we produce goods X with the help of input, factor input and non-factor inputs, it's known as a cost function. It is a functional relationship between cost and output is called a cost function, because C is a function of Q. More output, more cost; less output, less cost. And other related terms, real cost. Real cost means all the pain, sacrifice, discomfortable involved in factor service to produce given level of output. We can say that actually sacrifice, discomfortable and dissatisfaction bear by owner of factor service to supply factor service to produce given level of output is called a real cost. In modern time, this type of cost is not a part of a cost, because we are going in monetary system. Next is opportunity cost. Opportunity cost means value of next best alternative foregone is called a opportunity cost. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई अल्टरनेटिव ना हो, जिसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हो. मीन्स सपोज करो 1 एकड़ लैंड है, उस पर हम वीट और राइस दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर हम वीट प्रोड्यूस करते हैं तो राइस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? राइस होगी. अगर हम राइस को प्रोड्यूस करते हैं तो वीट क्या है? इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ राइस. सपोज एक पर्सन 10,000 सैलरी ले रहा है, उसको हायर सैलरी मिल रही है 20,000, तो वो 10,000 को छोड़ के जाएगा, तो 10,000 इज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स. That's next topic. Cost function and its relatives term. Money cost. We already discussed. Money cost means total money expenditure by a firm to produce given level of output, like wages, raw material expenditure in the form of money. Means आज मॉडर्न टाइम के अंदर जो भी प्रोडक्शन करते हैं, वेज है उसको हम वेजेस क्या है सैलरी में देते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ कैश देते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ मॉनेटरी सिस्टम देते हैं. रेंट पे करना है तो हम कैश में करते हैं, एंड रॉ मटेरियल बाय करना है तो हम मॉनेटरी सिस्टम से करते हैं. मीन्स ऑल द एक्सपेंडिचर बाय ए फर्म इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड ए मनी एक्सपेंडिचर या मनी कॉस्ट. अब मनी कॉस्ट के टू पार्ट हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. व्हेन वी आर स्टार्ट ए प्रोडक्शन, two type of expenditure we are aware. One, when we are hiring from outside, जो कोई भी सर्विस है हम बाहर से आउटसाइड हायर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आउटसाइडर को पे करना पड़ेगा. और कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो हम खुद मैनेज करते हैं घर पे, जैसे कि मेरी अपनी कैपिटल है, मेरी अपनी लैंड है, मैं खुद क्या एज ए अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर, तो ये एक तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है. इसी के बेस पर एक दिस एक्सपेंडिचर आ रहा and two type, explicit cost and implicit cost. Explicit cost is that cost which is paid to outsider for hiring factor service
टू प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेजेस टू एम्प्लॉयज़, ये हम आउटसाइड को पे करेंगे, इसलिए इसको क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि ऐसा खर्चा जो हम फैक्टर सर्विस का बाहर से हायर करते हैं उसके बदले में उनको सैलरी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट मीन्स इट इज़ दैट कॉस्ट विच इज़ सेल्फ ऑनिड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि मैं अपनी कंपनी के अंदर खुद काम कर रहा हूँ, मेरी अपनी खुद की ट्रांसपोर्ट है, मैंने अपने कंपनी का तो खुद अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को पे करूँ, दैट इज कॉल्ड ए इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। शॉर्ट टर्म मीन्स बेसिकली वी आर analyze the cost function with the help of short term, because short term is very important for any economic sector. Short term is a that period in which few factor are variable, few factor are variable and constant. टू टाइप के सेक्टर होते हैं जिसको शॉर्ट टर्म के अंदर हम चेंज कर सकते हैं, कुछ को हम शॉर्ट टर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते। जो शॉर्ट टर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं उसे वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म के अंदर चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स फैक्टर होते हैं। तो इसका टू पार्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट मीन इट इज़ दैट कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद चेंज द आउटपुट लेवल, मीन्स जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होते, जिन खर्चों को हमें बियर करना ही पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन जीरो है चाहे प्रोडक्शन क्या है मैक्सिमम है। इट इज़ नोन एज ए सप्लीमेंट्री और ओवरहेड कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस रेंट, वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़, लाइसेंस फीस, ये ऐसे खर्चे हैं जो हमें बियर करने ही पड़ेंगे, चाहे प्रोडक्शन जीरो है चाहे प्रोडक्शन क्या है मैक्सिमम है, विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड कर्व वी अंडरस्टैंड इट। हियर इज ए शेड्यूल, प्रोडक्शन इज जीरो, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 10, प्रोडक्शन इज 1, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 10, मीन्स कि प्रोडक्शन 0 to 4 राइज हो रही है, बट टोटल फिक्स कॉस्ट इज मेन कॉन्स्टेंट, इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज bear always by a form. In the form of diagram, total fixed cost is parallel to the x-axis. Next is total variable cost. Total variable cost is that cost which is change with change the output level, यानी कि ऐसी cost, ऐसे एक्सपेंडिचर जो आउटपुट के साथ साथ क्या है कम और अधिक होते रहते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, अगर 1 है तो 10 है, 2 है तो 18 है, 3 है तो 24 है, 4 है तो 20 है, मीन्स जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है राइज हो रही है। इट इज़ नोन एज ए डायरेक्ट एंड प्राइम कॉस्ट, यानी कि जिसका प्रोडक्शन पर कॉस्ट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ए टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यही लाइक लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर प्रोडक्शन कम करनी है हम रॉ मटेरियल कम एक्सपेंड करेंगे, अगर ज़्यादा करनी है तो हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। With the help of diagram, x-axis shows output and y-axis shows the cost। देखो यहाँ से जीरो जो TVC कर्व है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो इस कर्व को इस तरह से डिफाइन करना है क्योंकि इसके ऊपर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंप्लीमेंट होता है। पहले क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न है, तो यहाँ पर डिमिनिशिंग क्या है कॉस्ट होगी, तो मीन्स कॉस्ट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। फिर उसके बाद क्या कॉस्ट का बढ़ने का स्लोप क्या सेम हो जाता है जब कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है एक टाइम आता है जब डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ये क्या है ये पोर्शन का, यानी कि 3 डायग्राम्स को इसके अंदर क्या है मैच करके ये TVC बनता है। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न, तो यहाँ पर क्या डिमिनिशिंग रिटर्न टू कॉस्ट, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू कॉस्ट, एंड थर्ड डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर एंड हेयर इंक्रीजिंग रिटर्न कॉस्ट। मीन्स जब प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ेगी तो कॉस्ट क्या है धीरे धीरे बढ़ेगी, जब लेवल सेम होगा तो दोनों को रेशो के अंदर ही क्या है चेंज होगा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। उसके बाद क्या है TVC इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इसलिए TVC मीन्स इन इनिशियल स्टेट TVC इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, देन TVC इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट, देन TVC इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये बेसिक फंडा ऑफ दिस डायग्राम। नेक्स्ट इज total cost we understand it is a sum of TFC and TVC, हमने पीछे दोनों पढ़ी हुई हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर देखो आउटपुट क्या जीरो है, TFC 10 है एंड TVC जीरो है, फिर 1 के बाद क्या TFC रिमेन कॉन्स्टेंट एंड TVC कंटिन्यू राइज। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी TC आ जाएगी।
ठीक है। टीसी का एक अनदर फॉर्मूला भी है, एवरेज कॉस्ट डिवाइड बाय मल्टीपल बाय क्यू। यहाँ डायग्राम में देखो, यूनिट ऑफ कॉमोडिटी शो इन एक्स एक्सिस एंड कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस। टी एफ सी फिक्स है। टीवीसी के बारे में मैंने पढ़ लिया है कि पहले वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, फिर वो कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, फिर उसके बाद क्या इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। अगर टी एफ सी और टी वी सी दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टी सी बन जाएगा। तो टी सी स्टार्ट फ्रॉम दी मिनिमम ऑफ दी टोटल फिक्स कॉस्ट, आफ्टर देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इनके बीच में गैप है वो ऑलवेज किसका रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट का गैप रहेगा।